سب سے پہلے صحافی ابراہیم کرار کی جانب سے میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اس پروگرام میں رسم اجرائی تلنگانہ اردو جرنل ڈائری میں مہمان خصوصی نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف فرمائیں۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں صحافی ابراہیم کرار جو آج کی محفل کے نوشہ ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پہلے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہمارے آج کے مہمان اقلیتی قائد کانگریس پارٹی جناب ملک الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ سیکریٹری اردو اکیڈمی اور اسپیشل آفیسر حج کمیٹی جناب پروفیسر شکر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کو رونق بخشیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نشست سے سامان لیں۔ اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء توقیر کی ہے بلکہ ہر تقریب میں ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ اور آج کی محفل میں جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ محمد محمود علی صاحب وہ یہاں پر افروز ہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ تالیوں کی گونج میں ان کا خیر مقدم ایک مرتبہ حوال میں کیا جائے تاکہ محسوس ہو کہ آپ یہاں پر موجود ہیں۔ آج جو کچھ تم مہربانی ہے اردو کی رہے احساس کی ہر دم کہ تم مقروض اردو ہو۔ میں جناب ابراہیم کرار صاحب سے گزارش دعوت پر آپ لوگوں نے یہاں جمع ہوئے، مجھے بےحد خوشی ہے اور میرے حوصلہ افزائی ہوگی کہ میں دعوت بھی کام کر سکوں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ڈائری کو بنانے اور آپ تک پیش کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اور بے خوشی کی بات یہ ہے کہ میں 2016 کی ڈائری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج۔ اور میں نے بہت کوشش کی اور بہت کوشش کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہزاروں نمبر جو ہے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اب کی بار گزشتہ سال سے بہتر ڈائری بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور خاص طور پر اس سال 500 سے زائد علماء اکرام جو شہر حیدرآباد تلنگانہ اور ملک بھر کے جو ممتاز علماء اکرام ہیں ان کے نمبرات کو بھی اخراج کیا گیا اس میں۔ اس کے علاوہ شعرا اور ناول نگار افسانہ نگار مضمون نگار اور پھر ان کے علاوہ خاجی صاحبان جو پورے تلنگانہ حیدرآباد کے خاجی صاحبان کے فونوات بھی اس کو درج کیے گئے۔ اسی طرح فن خطاطی اور مزاحیہ فنکار اور تقریباً پوری گورنمنٹ انفارمیشن GHMC پولیس اور اسی طریقے سے۔ اور اس کا مقصد یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے رنگ ضبط کے اور تعلقات کے لیے جو ہے ڈائری کام آئے۔ اور ہماری حکومت آنے کے بعد سے بہت ساری آسانیاں جو ہے ہمارے جرنلسٹوں کو بھی دی گئی ہیں اور اس کے لیے جو ہم کو حاصل کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں حکومت سے جیسے انفارمیشن ہے ہمارے پاس جو ہے انفارمیشن کمشنر آفس کے فون نمبرات ہے اور اس کے معلومات ہونی چاہیے کہ صحافت کے لیے صحافی کو کن چیزوں کے لیے کس آفس سے رجوع ہونا ہے، تو ان تمام معلومات کی بھی جو ہے اس میں رہنمائی کی گئی ہے۔ تو بے انتہا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں جمع ہوئے اس ڈائری کا جو ہے رسم اجرا ہو رہا ہے اور اس ڈائری میں بنانے میں اور اس کام کو چلانے میں مجھے 4-5 مہینے کا وقت لگتا ہے اور اس کے اندر جو لوگوں نے میری رہبری کی
اور خاصیت کے شعلہ کے نمبرز کے لیے جو ہے شکور صاحب کا میں شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے کوشش کی اور پورے تلنگانہ بھر کے شعلہ کے نمبرز فراہم کرنے میں انہوں نے مدد کی. اور اسی طریقے سے دوست احباب اور بہت سارے لوگوں اور ہمارے ڈپٹی چیف منسٹر صاحب کی حوصلہ افزائی تو میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ایک حج گائیڈ کے نام سے بھی جو ہے بک نکالا ہوں اور جس کو بھی کافی سراہا گیا, آپ لوگوں نے رسپانس دیا. تو بہرحال میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں اور میں آئندہ بھی جو ہے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا جو ہے خواہاں رکھوں گا انشاءاللہ. PRS کے ابھرتے ہوئے نائب جناب ارشد علی خان صاحب, جناب ابراہیم صاحب, جناب اکبر صاحب اور اردو کی سرپرستی کرتے آ رہے ہیں اور مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے روح رواں اور بھائی جناب ایم اے شکور صاحب, سیکرٹری ڈائریکٹر تلنگانہ اردو اکیڈمی, اور یہاں پہ موجود میرے صحافی دوست, نوجوان ساتھیوں, بزرگوں, اور خاص طور پہ میں آج اپنی جانب سے جناب ابراہیم صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایج میں جی رہے ہیں اور انفارمیشن ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اہم حصہ بن چکا ہے, اور جس طریقے سے ہم انفارمیشن استعمال کرتے ہیں وہ ہم پہ منحصر ہے. اور جناب ابراہیم صاحب نے, میں گزشتہ سال کی بھی ڈائری میں نے دیکھی, انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ پوری انفارمیشن کو سمیٹ کے ایک کتاب میں, ڈائری کی شکل میں ہم سب کے سامنے پیش کرے, اور جس کی وجہ سے خاص طور پہ کوئی بھی اگر انفارمیشن ہو ہم کو اس ڈائری میں دستیاب آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے, کیونکہ کئی 10 جگہ ہم کو اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جس کے لیے جناب ابراہیم صاحب قابل مبارکباد ہے. اور خاص طور پہ حکومت تلنگانہ ہمیشہ جب سے, کیونکہ ہمارا نیا اسٹیٹ ہے, 2 سال ہونے کو جا رہے ہیں ہمارا اسٹیٹ بن کے, اور 2 سال میں خاص طور پہ ہمارے اسٹیٹ میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور جو مائنورٹیز ڈیولپمنٹ ہے, اور خاص طور پہ جو صحافیوں اور جرنلسٹوں کی جو ہمت افزائی کی جا رہی ہے, اس کے لیے ہمارے حکومت تلنگانہ کے چیف منسٹر جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب اور ان کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ کو میرا تعلق کانگریس سے ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہمارے اتراکھنڈ کے جو چیف منسٹر جناب ہریش راوت صاحب تھے, وہ 1 مہینہ پہلے جب بجٹ پیش کرنے والے تھے اس سے 8 دن پہلے مجھے فون کیا ہے, اور انہوں نے پوچھا کہ خطیب صاحب بہت کچھ پڑھا ہوں, بہت کچھ سنا ہوں میں تلنگانہ میں جو مائنورٹی اسکیمس ہے اس کے بارے میں, تو وہاں پہ کون سے اسکیمس ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ اسکیمس کے سمری بنا کے مجھے بھیجے. تو میں یہاں پہ جو ہمارا بجٹ میں پیش کرنے جا رہا ہوں, اس بجٹ میں اس کو سمجھیے آپ پیش کر سکوں اور اس کو میں یہاں پہ انکلوڈ کر سکوں. تو میں نے فون پہ چند اسکیمس جو تھے مجھے یاد تھے, کیونکہ اتنے زیادہ اسکیمس ہے کہ یاد رکھنا بھی ہم کو مشکل ہو گیا ہے. تو میں نے ان کو فون پہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اسکیم صرف پیپر پہ ہے یا یہ اس پہ سمجھے عمل بھی ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ جتنے اسکیمس میں نے آپ کو بتائے ہیں اس پہ پورا کا پورا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ جب میں نے اوورسیز اسکیم کے بارے میں بتایا اسٹوڈنٹس کی, تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ گرانٹ ہے یا لون کی شکل میں اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں. تو جب میں نے کہا کہ نہیں یہ لون نہیں ہے بلکہ گرانٹ ہے, تو انہوں نے بہت سراہا اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے لیے قابل فخر بات ہے کہ آج ہمارے بیچ ایک ایسے اقلیتی ہمدرد چیف منسٹر موجود ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو ہماری کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستگی ہو اس کے اوپر اٹھ کے ہم کو سراہنا چاہیے. اور خاص طور پہ ہمارے بیچ جناب محمد محمود علی صاحب کی موجودگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کتنی دلچسپی کے ساتھ وہ ہمارے بیچ میں آتے ہیں اور ہم سب کی ہمت افزائی کرتے ہیں. وہ کبھی یہی نہیں دیکھتے کہ یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا یہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے. محمود بھائی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ اگر آپ لیڈرشپ کو منوانا چاہتے ہیں تو کس قسم سے آپ لیڈرشپ کو منوا سکتے ہیں. اس کی صحیح مثال اور صحیح نمونہ ہم جناب محمود علی صاحب کے پرسنالٹی میں شخصیت میں دیکھتے ہیں. اور میری نیک کے تمنائیں نیک خواہشات جناب ابراہیم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے ساتھ ہے. اور خاص طور پہ جتنے یہاں پہ صحافی حضرات موجود ہیں ان کا بھی
फर्दर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ही की वजह से हमें न्यूज़ मिलते हैं और आप ही की वजह से मैं समझता हूँ कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हम कहते हैं वो है मीडिया, और मीडिया की खासतौर पर इतनी अहमियत है आज की जमहूरियत में, जिसकी वजह से सियासतदान भी उनसे डरे हुए रहते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हो वो भी उनसे डरे हुए रहते हैं। और ये डर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डर की वजह से, क्योंकि आदमी दो ही चीज़ों की वजह से समझिए दयानतदारी के साथ काम करता है, वो खुद या तो दयानतदार हो या नहीं तो उस पर डर हो, तो दोनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है इंसान के लिए, और आप लोग एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फिर से मैं अपनी तारीफ से जनाब इब्राहिम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मौके पर मदद किया, और अपनी जानिब से नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद मैं आपको देते हुए उसका बताऊँ शुक्रिया। खुदा हाफिज़, जय हिंद। जनाब इब्राहिम साहब और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन जलसा, मैं सबसे पहले इब्राहिम साहब को और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से, लगन से, काफ़ी कोशिश के बाद इस शहर की इशाअत अमल में आई है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद बहुत कम लोग वाकिफ़ होंगे कि डेयरी किस तरह बनती है। क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि मैं भी डेयरी शाये किया हूँ उर्दू अकादमी की, तो उसमें कितनी मेहनत होती है डेयरी शाये करने में, 3-4 महीने लग जाते हैं। उसमें नाम देखना होता है, उसके स्पेलिंग देखना होते हैं, टेलीफोन नंबर देखने होते हैं, और ख़ास तौर पर डेयरियाँ कई किस्म की होती हैं। एक तो ये होती है कि प्राइवेट डेयरी हम मार्केट से खरीद लेते हैं, बस उसमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन होता है। दूसरी ये होती है कि गवर्नमेंट की डेयरी होती है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन इस डेयरी की खुसूसियत ये है जो इब्राहिम साहब ने तरतीब दी है, ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी है और गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन भी है। ये बहुत बड़ी बात है कि दो इंफॉर्मेशन एक जगह पर हमको इस डेयरी में मिल जाते हैं। न सिर्फ प्राइवेट इंफॉर्मेशन में ऐसा नहीं कि छोटी मोटी चीज़ों को उसमें ऐड किया गया, बल्कि शोरा ग्राम के नंबर अक्सर ये होता है कि दूसरी रियासतों के बहुत सारे लोग मुझे उर्दू अकादमी के चेयरमैन वगैरह बात करते हैं और हमारी रियासत के शोरा के फ़ोन नंबर पूछते हैं, तो शोरा के फ़ोन नंबर हैं उसमें। इसके अलावा उलमाए मशाकिल, हुकूमत के स्कीमात और रियासत तेलंगाना के सारा इंफॉर्मेशन इस डायरी में मौजूद है। लेकिन मेरी इब्राहिम साहब से गुजारिश है, क्योंकि गुज़िश्ता साल भी मैं शिरकत नहीं किया था, किसी वजह से मैं बाहर था, लेकिन गुज़िश्ता साल में इन्होंने अप्रैल के महीने में डायरी को रिलीज़ किया और ये साल भी अप्रैल के महीने में इसकी रिलीज़ अमल रस्म इजराई अमल में आ रही है। आप थोड़ी सी कोशिश करके इसको जनवरी के महीने में इसकी इशाअत करें तो बहुत बेहतर रहेगा, ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन सही वक्त पर लोगों को मिल जाएगा। मैं हमारी रियासत की, क्योंकि ये वक्त काफ़ी लंबी तकरीर का तो है नहीं, लेकिन एक दो बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि उर्दू की डायरी की बहुत ही अहमियत है, क्योंकि हम उसको मार्केट में जितने डायरियाँ अवेलेबल हैं वो सारे के सारे अंग्रेजी के होते हैं। उर्दू की डायरी एक तो उर्दू अकादमी की जानिब से शाये होती है जो हुकूमत की होती है, उसमें हम लोगों ने कोशिश की थी कि सारे अक़लियती बलबूद के स्कीमात उसमें हम लोगों ने शाये किया। दूसरी ये उर्दू जर्नलिस्ट डायरी है, ये डायरी में भी सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है। हुकूमत की जानिब से जितनी भी खलीफुर रहमान साहब ने कहा है कि हमारे रियासत तेलंगाना में अक़लियतों के लिए बहुत सी स्कीमात लाई गई है। मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान में ये वाहिद रियासत है जहाँ पर इतनी अक़लियतों की तरक्की के स्कीमात है, नई नई स्कीमात यहाँ पर आ रही है और कामयाबी के साथ जारी है। जहाँ तक उर्दू अकादमी का सवाल है, बहुत सारे अक़लियती बहबूद के बारे में ये कहा जा रहा है कि अक़लियती बहबूद का बजट खर्च नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ उर्दू अकादमी का सारा बजट आपको मार्च में नहीं बल्कि जनवरी में ख़त्म हो चुका है। सारी की सारी स्कीमात इम्प्लीमेंट हुए उर्दू अकादमी की। तो ये हम लोगों में हमारी कोशिश है और ख़ास तौर पर हमारे नायब वज़ीर आला जनाब महमूद अली साहब की सरपरस्ती में अक़लियती बहबूद में नई स्कीमात आ रही है और कामयाबी के साथ उस पर अमलवारी हो रही है।
جیسے آپ شادی مبارک اسکیم لیجیے، تقریباً ابھی تک 66,000 سے زائد بینیفیشریز کو 51,000 روپے دیے گئے ہیں شادی مبارک میں. اور جیسے اسکالرشپ کی اسکیم لیجیے. اب سب سے بڑی اسکیم اب جو آئی ہے اقلیتوں کے لیے وہ 71 ریزیڈینشل اسکولز کی اسکیم ہے، جو سارے ہندوستان میں نہیں بلکہ میں کہتا ہوں ساری دنیا میں یہ پہلی ریاست ہے جو اقلیتوں کے لیے اتنی بڑی اسکیم لے کر آئی ہے. تو میں تمام اقلیتوں کے جانب سے ہمارے وزیر اعلیٰ عالی جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب کا اور عالی جناب محمود علی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے اسکیمز اقلیتوں کے لیے مہیا کر رہے ہیں. یہ جو اقلیتوں کے ریزیڈینشل اسکول کی اسکیم ہے، ایک اسکول 20 کروڑ کا ہے، 71 اسکول بنا رہی ہے حکومت. یہ کوئی معمولی اسکیم نہیں ہے، یہ پہلی اپنی طرز کی پہلی اسکیم ہے جو اقلیتوں کے لیے اتنی بڑی اسکیم آئی ہے. تو میں ہمارے نائب وزیر اعلیٰ عالی جناب محمد محمود علی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ کی سرپرستی میں نہ صرف اردو اکیڈمی بولیے یا حج کا آپ آپ کی دلچسپی کی وجہ سے آپ دلی میں جا کر محکمہ عبداللہ اور ہمارے ایکسٹرنل افیئر منسٹر جو سے آپ نے ملاقات کر کے حاجیوں کے کوٹے کے تعلق سے آپ نے نمائندگی کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوٹا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیشنل کوٹا آنے کی امید ہے. اسی طرح رباط کا کام جو 4 سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، صرف اور صرف ہمارے نائب وزیر اعلیٰ کی کوششوں کی وجہ سے 20 سال 600 حاجی 596 حاجی اس رباط میں فری اکاموڈیشن. ایک حاجی کے لیے 46,000 روپے ہوتے ہیں اکاموڈیشن کے، وہ فری اکاموڈیشن، فری فوڈ، فری واشنگ کی سہولت دی گئی ہے. تو اس مرتبہ آپ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. 1,000 حاجیوں کے لیے آپ کی کوشش جاری ہے، انشاءاللہ وہ بھی کام ہو جائے گا. ہماری ریاست تلنگانہ اس وقت سارے ہندوستان میں نمبر 1 اسٹیٹ ہے. آپ دیکھیے ایک زمانے میں ایک دور تھا شمالی ہند کو اردو کا مرکز کہا جاتا تھا، لیکن آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ حیدرآباد اور ریاست تلنگانہ اردو کا مرکز ہے. آپ دیکھیے یہاں پر اردو کے بڑے بڑے اخبارات شائع ہوتے ہیں، یہاں سے بڑے بڑے رسائل شائع ہوتے ہیں، اردو کی ڈائریاں شائع ہوتی ہے، اردو یونیورسٹی یہاں پر ہے، اردو کے سیٹلائٹ ٹی وی چینلز یہاں پر ہے جو کوئی اور ریاست میں موجود نہیں ہے. تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ ہمارے نائب وزیر اعلیٰ اور ہمارے وزیر اعلیٰ کو جاتا ہے اردو کی سرپرستی اور اقلیتوں کی سرپرستی کے لیے. میں آخر میں پھر ایک مرتبہ ابراہیم صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو، ابو احمد صاحب یہاں پر موجود ہے اور بہت سارے لوگ اس ڈائری کی ترتیب میں ان کا تعاون کیا ہے، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور مجھے یہاں پر آپ نے مدعو کیا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. آج کے دولے ہی ریاست تلنگانہ بننے سے پہلے کئی آگے کے کام کرنے میں ابراہیم صاحب کا بہت بڑا رول ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 سال سے وزیر کا ہمیشہ ایک ارادہ ایک خواب تھا کہ ہم سارے مسلمان بھائی کا ایک فون نمبر ایک جگہ ہے تو ان کے کئی مسائل حل ہوتے وہ سوچے. انشاءاللہ وہ آج ہو چکا ہے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ میرے سے چند دن پہلے اکبر صاحب آپ کے ڈسٹرکٹ کے پورے نام میرے کو ہونا بولے تو میں یہ کہا کہ ابراہیم بھائی یہ چند نام نہیں، میں پورے نام دے سکتا ہوں کیونکہ آج آپ اتنی تکلیف ہے کیونکہ ہمارے بھائی کا ایک پورا کا نام آنا ہو جو سوچے وہ واحد آپ کم ہے. اور ایک افسوس کی بات ہے آج ہمارا اس پروگرام ہو رہا، آج ہمارے اسٹیج پہ ہمارے عالی جناب محمود علی صاحب اتنا قیمتی وقت دے کے آج دیے ہیں اور ہمارے اسٹیج پہ جو آج ہمارے بینر پہ نام لگایا گیا ہے ان کا افسوس کی بات ہے کیونکہ وہ MLA رہندو کو MSC رہندو وہاں پر ہمارا پروگرام ہو رہا. تو آپ جتنے بھی دور میں رہندو کتنے بھی کام میں ہیں تو وہاں پر آپ آ کے یہاں ٹائم دے کے ابراہیم صاحب کا آگے ہمیشہ ہم ابراہیم صاحب کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہمت افزائی کرو تو ہمارے سارے مسلمان بھائی ہمیشہ خوش ہوتے. ایک تو یہ کرسی یہ سیٹ کبھی اس محفل کی رونق بڑھانے کے لیے ڈپٹی میئر حکیم در وزیر حیدرآباد
बाबा फसीहुद्दीन साहब आ चुके हैं और चाहते हैं कि तालियों की गूंज में उनका एक मतलब खैरमक़दम किया जाए। आप सबको तरीके तेलंगाना में ज़्यादातर पूरे पुराने सिपाही यहाँ पर है और उर्दू रिपोर्टर्स भी है पूरे। महमूद साहब के बारे में 2 लफ्ज़ भी कहना चाहूँगा से पहले। वाली सिफत भी है उन्होंने। मैंने आज तक तरीके तेलंगाना में मैंने देखा 14 साल में कभी भी उनके मुँह से कभी भी किसी के लिए में कभी लफ्ज़ में कभी गाली तो बहुत दूर की बात किसी के खिलाफ बात भी नहीं की। और गैस पे तस्लीम रखे डिप्टी सीएम अली सिफत इंसान मोहम्मद महमूद अली साहब और 2001 से तहरीक तेलंगाना में मेरे साथ काम करते हुए रह रहे मेरे भाई अकबर साहब को, अशरफ साहब को, खलीफुल रहमान साहब को, हमारे प्रोफेसर आज उर्दू अकादमी डायरेक्टर और हमारे निज़ाम कॉलेज में प्रोफेसर भी रह सके शुक्र साहब को और इन पूरों को एक जगह इकट्ठा करने में और उर्दू ज़बान को फिर से तेलंगाना में याद लाने में, मुकाम दिलाने में अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं हमारे टी न्यूज़ के उर्दू रिपोर्टर मेरे भाई इब्राहिम को और मेरे सामने बैठे पूरे उर्दू रिपोर्टर्स को, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंटिंग उर्दू रिपोर्टर्स को और पूरे भाइयों को मेरे तरफ से सरज़मीन तेलंगाना की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज इब्राहिम है मैं इतनी जद्दोजहद की है उर्दू के लिए, वो दोनों भी तहरीक तेलंगाना में काम कर रिपोर्टर का रोल तो मैंने मगर मुजाहिद का रोल भी था उसमें। तो आज हमने देखा महमूद साहब को मालूम, हमको भी मालूम, जब तेलंगाना स्टेट फॉर्म हुआ उर्दू की हालत बहुत बुरी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से केसीआर साहब की जद्दोजहद से और महमूद अली साहब की जद्दोजहद से हमारे GHMC मिनिस्टर और म्यूनसिपल मिनिस्टर KDR साहब की जद्दोजहद से हम देख रहे उर्दू ज़बान को एक आला मौका मिल रहा। क्योंकि आज मैं जब GHMC में गया पहले हमारे को एक देखा सबको स्पीचेस जो है उर्दू में आया, तेलुगु में आया, उर्दू में आया, सब में आया। उर्दू में जब स्पीच आया तो देखा कि बयान लिख क्या है, यहाँ पे सबको TTP में आया, हमारे उर्दू में क्या है बयान लिख के इजलास करके भेजे। बोले तो नहीं साहब उर्दू ट्रांसलेशन है मगर उर्दू TTP करने वाला नहीं। तो गुज़िश्ता हुकूमतों में उर्दू ज़बान के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई मगर हम आते ही उसमें इमीडिएट चेंजेस करें। उर्दू ट्रांसलेटर को भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मंगाए और वहाँ से साथ ही साथ एक उर्दू TTP करने वाले को बुलाया और हमारे सेक्रेटरी सेक्शन में कहा कि उसकी दूसरे लैंग्वेजेस को जो मुकाम आप दे रहे हैं उससे बराबर का मुकाम उर्दू ज़बान को दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़ल करम से आज फिर से तेलंगाना में उर्दू ज़बान जी रही है, फिर से अपने मुकाम पे पहुंच रही है इंशाअल्लाह। महमूद अली साहब भी डिप्टी CM हैं, KCR साहब भी बहुत माइनॉरिटी की तरफ उर्दू ज़बान की तरफ बहुत अच्छी सोच रखते हैं। इंशाअल्लाह उर्दू ज़बान को आला से आला मुकाम जल्द से जल्द मिलेगा और हर डिपार्टमेंट में उर्दू ज़बान में सेकेंडरी प्रिपरेशन देकर वहाँ पर अच्छे से मुकाम दिया जा रहा है और जल्द से जल्द मैं समझता हूँ हर जगह उर्दू ज़बान को और उर्दू को एक आला मौका मिलेगा तेलंगाना हुकूमत। और इसी के साथ इब्राहिम साहब जो डायरी नरेशन करें उसमें पूरे हैदराबाद के पूरे डिपार्टमेंट्स के और GHMC ऑल डिपार्टमेंट्स के फ़ोन नंबर्स के साथ और मशाइख के नंबर भी रखना ये पहली बार समझता हूँ क्योंकि कभी भी पॉलिटिकल इशू और मशाइख तो कभी मिलाया नहीं गया। तो उसकी पहली बार आज पूरे मशाइख में उनको लेकर और पूरे डिपार्टमेंट्स को लेकर पॉलिटिकल लीडर्स को पूरों को एक ही डैश में एक ही डेयरी में रखना मैं समझता हूँ पहली बार हुआ है। इसकी इब्राहिम साहब को दाद देना चाहिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पहले
मेरे सामने बैठे हुए भाइयों को गुजारिश करता हूँ, उर्दू जबान को इंशाअल्लाह एक आला मुकाम जरूर मिलेगा, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले ही महमूद अली साहब के साथ सीएम केसीआर साहब कई बार डिस्कस करें, जो उर्दू जबान को खत्म किया जा रहा है, जब अलहदा तेलंगाना बन जाएगा इंशाअल्लाह उर्दू को फिर से मौका दिलाया जाएगा। कई बार केसीआर साहब ने कहा, उसी रास्ते पे जाते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर उर्दू को आला मुकाम दिया जा रहा है। जल्द से जल्द उर्दू का अच्छा इंशाअल्लाह आला मुकाम दिया जाएगा। मेरे को इतना वक्त देने के लिए, क्योंकि वो बहुत देर से महमूद अली साहब हम तो वेट कर रहे हैं, माफी चाह रहा हूँ थोड़ी लेट हो, क्योंकि इब्राहिम साहब बोले, मगर फिर भी चल प्रोग्राम से आज उसको कैंसिल करते हुए मोहब्बत इब्राहिम में हम यहाँ आ गए। तो इंशाअल्लाह जरूर ऐसे मैं इस यहाँ ठहरे उर्दू रिपोर्टर से और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग उर्दू रिपोर्टर से गुजारिश करता हूँ, उर्दू को मौका मिलेगा। जितना टाइम था हम ही लिखते हैं, हम ही पढ़ते हैं, हम ही खुश होते हैं, बात थी, मगर इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। हम ही लिखेंगे, हम ही पढ़ेंगे, हम ही लिखेंगे, जमाना पूरा पड़ेगा, उर्दू को वो दिन आएगा इंशाअल्लाह। केसीआर साहब हमें सदारत में इंशाअल्लाह उस दिन भी आएगा। मेरे को इतना मौका देने के लिए फिर से तहे दिल से मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। उर्दू जर्नलिस्ट डायरी की रस्में जनाई नायब तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली साहब के हाथों अमल में आएंगी। आप लोग अपनी नशिस्तों पर बैठे हैं, डिसिप्लिन का मुजाहरा करिए, एहतराम खिदमत के लिए, गुलकोशी के लिए आपको मदद किया जाएगा। आप लोग अपनी नशिस्तों पर बैठे हैं। गुजारिश करूंगा हैदराबाद में खिदमत नायब तेलंगाना जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, मैं नामों से जो है जैसा मुफ्ती साहब बोले, मैं एक का नंबर लगा, दूसरे का नंबर जरूर लगेगा। मैं सबको आज यकीन दिलाता हूँ, जितने लोग पार्टी में काम कर रहे हैं जरूर उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। इंशाअल्लाह हमारे आनंद से बहुत इस बारे में गौर कर रहे हैं। जो लोग पहले से पार्टी में काम कर रहे हैं उन्हें जरूर एड्रेस किया जाएगा। और अकबर भाई भी 14 साल से मुसलसिल करीमनगर के अलावा भी सारे तेलंगाना में जहाँ भी जो इलेक्शन होते हैं, जहाँ भी जो प्रोग्राम्स होते हैं, और अकबर भाई जरूर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन में भी काफी काम करते रहे। हमारे खलील भाई साहब बहुत सीधे आदमी है, वो पार्टी वार्टी नहीं देखते, अपने भाइयों को जरूर देखते हैं। जहाँ भी अपने भाई शरीक रहेंगे बराबर वो आके शरीक होते हैं। हकीकत में भी तमाम लोगों को यही होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर को जरूर जिंदगी में या हर जगह उरूज और जवाल उसी तरह असम्बली में किसी की नुमाइंदगी रहती। हम भी अपोजिशन में बैठे, आज फिर पावर में है तो दुनिया में सिलसिला चलता रहता है, मगर हमारे में मोहब्बत बरकरार होना चाहिए। और हमारे से बीच में आते तो सब मिलकर एक साथ अच्छे काम को अच्छा बोलना बहुत अच्छे इंसान की खुसूसियत है। अच्छे काम को भी बुरा बोलना एक बड़ी अजीब बात है। आजकल अपोजिशन का एक मसला ऐसा हो चुका है, कितना भी अच्छा काम करो, सोने का डाला भी तो बताएंगे कहीं ना कहीं गेट भी हुई है। तो मैं खलील भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा अच्छी चीज को अच्छी नजर से देखते हैं, अच्छी बात करते हैं। हमारे उर्दू अकादमी के सेक्रेटरी शुकुर साहब जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तेलंगाना बनने के बाद उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, पर मजीद जरूरत है उर्दू के बजट में इजाफा करना चाहिए। इस मरतबा भी जो बजट बनाएगा उर्दू का बजट इससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो इंशाल्लाह सीएम साहब से बोल के जो उनके कोटे में पैसे उसमें से उर्दू अकादमी को इजाफा पैसे दिलाएंगे, और ताकि उर्दू जबान को अच्छी तरह फरोग दिया जाए। अहम बात यह उर्दू अकादमी जो उर्दू मीडियम के सिलेबस है वो तेलुगु अकादमी में छपते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सीएम साहब से भी बात किया हूँ, तो अगर उर्दू अकादमी में छपेंगे तो किताबों में जहाँ भी कोई रुख होगा उसे निकाल कर अच्छी तरह से करेंगे। और हमारे मोहम्मद अली भाई साहब जो इस डेयरी के अंदर बहुत
आगे आगे रहे, अक्सर भलाई काम में रहते हैं और वो भी बड़ा कौम का दर्द रखते हैं। और हमारे तीनों मुकर्रिर, हमारे मुकीद भाई, हमारे वहीद भाई, हमारे शरीफ भाई बहुत सी बातें बताए। मैं एक दो बात जरूर बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे जब रेवेन्यू मिनिस्ट्री दी गई डिप्टी सीएम के साथ, लोग बड़े तशवीश में थे कि एक मुसलमान किस तरह रेवेन्यू मिनिस्ट्री चला सकता है, वो भी ओल्ड सिटी का। और आप देखेंगे अल्लाह की तरफ से हर साल रेवेन्यू की आमदनी में इजाफा होता जा रहा है। मेरे डिपार्टमेंट में साल जो बजट पेश किया गया, पिछले साल से 21% 6.8% मतलब 22% के करीब रेवेन्यू में इजाफा, इनकम में इजाफा हो और बगैर किसी टैक्स इजाफा किए रजिस्ट्रेशन का खास तौर से। और उल्टा कई चीज़ों में मैंने कम किया। गिफ्ट डीड के अंदर लोगों जिसमें माँ बाप अपनी औलाद को गिफ्ट करते थे, उस पर 4% लागू किया गया था, मैंने उसे कम करके 1% का बराबर किया। दूसरी चीज़ों में तो जब प्रॉपर्टी तकसीम होती है तो आपस में रजिस्ट्री करवाना बड़ा मुश्किल होता है। गिफ्ट डीड में अगर कम से कम परसेंट लेंगे और वो भी और दूसरों के लिए तो और कुछ कम किया लेडीज के लिए, तो ज़्यादा जिंदगी में डिवाइड होती है। पैसे ना होने पर जायदाद तो बहुत बड़ी है पर अपने औलाद के नाम पे नहीं कर सकते जिंदगी में। ये समझते हैं कि भाई हमारे पास आए पैसे, उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, एक कागज पे लिखते थे, बाद में जाके मुश्किल होती। मैंने कहा उस परसेंटेज को घटा दिया जाए, कम से कम उसे लिया जाए ताकि फैमिली में लोग डिस्प्यूट ना रहे। उसी तरह रेवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से डे बाई डे काम कर रहा है और रेवेन्यू के अंदर बहुत से तब्दीलियां लाए गए। रेवेन्यू पॉलिसी बनाई गई है, इंशाल्लाह करप्शन भी हाई लेवल बिल्कुल क्रश किया गया है। लो लेवल को कंट्रोल करना भी कुछ बाकी है, उसके लिए हम कानून साजी कर रहे हैं। इस तरह इंडस्ट्री पॉलिसी है, उसी तरह रेवेन्यू पॉलिसी बना रहे हैं और उसमें जरूर अच्छे से अच्छी तरमीमात करते हुए उसे भी डेवलप करेंगे। और आज मुझे खुशी इस बात की तो बहुत से पुराने चेहरे हमारे साथी जो 14 साल से काम कर रहे हैं हमारे साथ, कभी कभी मुलाकात हो रही थी और आज सबसे दुबदू मुलाकात हो गई। मैं एक बात का यकीन दिलाता हूँ, यकीनन हमारे ऑनरेबल सीएम साहब तमाम लोगों का जरूर ख्याल रखेंगे। ज़्यादा से सब्र की जरूरत है, इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम लोगों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। सीएम साहब की से यही ख्वाहिश है और ऐसे सीएम दुनिया में बहुत कम होते हैं। इस तरीके से आज यही तेलंगाना हासिल होता और किसी और पार्टी के हाथ में जाता तो तेजी से तरक्की नहीं कर सकता। आप देखिए हमारे बाजू महाराष्ट्र कर्नाटक में मेरी कुछ लड़की रहती है बल्लारी में, 10 दिन में एक बार पानी आ रहा है, रोजाना 8 घंटे पेट्रोल हो रहा है। आज हमारी नई स्टेट होने के बावजूद भी किसी किस्म की तकलीफ नहीं, खुशहाल जिंदगी, सुकून की जिंदगी। और यहाँ पर पुलिस का लैंड ऑर्डर इतना अच्छा कंट्रोल है, उसके साथ साथ हुकूमत के जितने मंसूबे हो रहे हैं बहुत अच्छे मंसूबे हैं। हुकूमत सबसे पहले तेलंगाना सर्वे करवाने के बाद आसरा स्कीम, फूड सिक्योरिटी कार्ड, कई स्कॉलरशिप, इसके अलावा बच्चे जो बाहर जाने के लिए भी जिस तरह जिक्र किया गया, जो बच्चे हम सही, मैं आज से कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, बहुत से माइनॉरिटी जिलों में मुझे लपट गया और बहुत से बिहार में देखिए 8 करोड़ लोग रहते हैं जिसमें 2 करोड़ मुसलमान है और 360 करोड़ का बजट है बिहार का। आज भी वहाँ के मिनिस्टर साहब ने मुझसे बात की, सीएम साहब वाकई हमारे सीएम साहब अल्लाह ताला देर से देता है अंधेर नहीं होता, इस तरह वो कहते थे। और इम्तिहान के बाद हमारा तेलंगाना मिला है और बहुत अच्छी तरीके से इंसाफ होगा और सबको तरक्की के मौके मिलेंगे। और खासतौर से जर्नलिस्टों के काम से जरूर बोलना जरूरी है। हमारे इब्राहिम भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हुए काम करते हैं, रात के 12 बजे तक काम करते हैं अपने जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए। और वो हमेशा बहुत अच्छी तरीके से हमारे टी चैनल को बहुत अच्छी रिपोर्टिंग देते हैं और हमारे बारे में भी माइनॉरिटी के जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें जरूर वो कोशिश करते हैं कि कहाँ जहाँ तक हो सके हमारे लोगों को प्रमोट किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उर्दू जबान हमारे लिए बहुत जरूरी है और आज एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ी तकलीफ हो रही है उर्दू जबान। मैं जब कहीं भी जाता हूँ मदरसों में तो मैं कहता हूँ साथ में अंग्रेजी भी मॉडर्न एजुकेशन जरूर दीजिए। हम दोनों चीज़ों में अगर तालीम पाएंगे दीन और दुनिया में तो दोनों जगह अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा ऐसा होता है उर्दू मीडियम के मदरसे होते हैं, वहाँ से पढ़ने के बाद अरबी मीडियम में रहते हैं, अरबी मदरसों में पढ़ते हैं, उसके बाद हम इमाम या मौजूद की नौकरी ढूंढते हैं। वो बहुत कॉम्पिटिशन हो चुका है। इमाम साहब को देखिए सरकार की तरफ से इमाम साहब को 1000 रुपये और मौजूद साहब को 1000 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि उनका माशी हालात कमजोर है। हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टेट में दीनी तालीम हासिल करने वाला भी दुनिया में टेक्नोलॉजी से अच्छी तरक्की करे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जिस तरह सैयद अहमद साहब ने कायम किया था तो उसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी कायम हो और हमारे हर लोग तालीम है। सीएम साहब इसीलिए
71 बरस से अभी शुक्र साहब लगे इंग्लिश मीडियम तरीके से स्कूल कायम कर रहे हैं और वहाँ पर 45,000 बच्चों में एडमिशन के लिए कोशिश की जा रही है। मैं शुक्र साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपका चैनल अपने पास 3 चैनल के अलावा टीवी उर्दू भी है, रोजाना 1 घंटा इंटेलेक्चुअल लोगों को बिठाया जा रहा है ताकि वहाँ पर लोगों में अवेयरनेस पैदा किया जाए। मैं खासतौर से मेरे तमाम सियासी कायदीन से भी अपील करना चाहता हूँ कि उन मदरसों में भर्ती होना बहुत जरूरी है। अगर एक बार हमारी शिक्षा पीछे हो जाएगी तो मुश्किल होगा, क्योंकि मुसलमान नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारी नजर से दूर हैं। और सीएम साहब ने वहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम किया है। लड़कियों का जाना स्पेशल स्कूल है और तमाम के तमाम A to Z लड़कियों को रखा गया। गेट कीपर भी लड़की को रखा गया, गेट बंद करना और खोलना है। स्कूल का पूरा अमला सिर्फ औरतों का रखा गया। इसी तरह बॉयज के लिए अच्छे से अच्छा तालीम याफ्ता लोगों को हासिलों का मुकाबला किया जा रहा है, तो ताकि हम हुकूमत की स्कीम से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम तालीम में पीछे रहेंगे तो दुनिया में तरक्की नहीं कर सकेंगे। आज मैं खासतौर से इब्राहिम साहब को बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और मुझे आगे जाकर तो बहुत बड़े हमारे जर्नलिस्ट के अलावा बहुत बड़े आथर भी बनेंगे। आज ऐसे तमाम भाइयों से भी एक बार अपील करता हूँ, हर आदमी जाते हुए एक डायरी जरूर उनसे लेकर जाए ताकि वो खर्चा कर इस लाइफ में भी रात दिन मेहनत करते हुए भी हमारे लिए, हमारे काम के लिए वो डायरी इब्राहिम साहब को काम नहीं आएगी पर हमारे हर वर्ग को काम आएगी। मुफ्ती साहब ने कहा आप जब चाहे किसी भी ऑफिसर का नंबर देख सकते हैं, किसी भी सियासी कायद का नंबर देख सकते हैं, किसी भी एमएलए का नंबर देख सकते हैं, किसी भी एमपी का नंबर देख सकते हैं। तो आपको घर में डायरी रहेगी तो आपको पूरे अपने लीडरों को मिलने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका मिलेगा और आपको आसानी पैदा होगी। इसके लिए उन्होंने डायरी बनाई है। आप तमाम समय अदब गुजारिश करता हूँ कि जरूर एक डायरी उनसे खरीद कर ले जाइए। उसकी कीमत भी बहुत ही मामूली रखी गई है, सिर्फ 100 रुपए की बात है और आप तो 100 रुपए आजकल तो बहुत कम हो चुके हैं। हालांकि उसको कुछ फायदा नहीं है पर उनका जज्बा खिदमत करने का, अपनी सहूलत पहुँचाने का, इससे तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है से इस्तेमाल कीजिए और डायरी लेकर जाइए। और जवाब देने पर और आप लोग काफी देर से हम सबका इंतजार करते रहे, इसलिए मेरे साथ भी थोड़ी ताकीर हुई, मुझे भी आने में थोड़ी ताकीर हुई क्योंकि सीएम साहब के पास में इस काम के सिलसिले में गया था। मैं सबको देरी की माफी चाहता हूँ और मुझे सुनने पर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इब्राहिम साहब को दिल की गहराई से देते हुए अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। के नाते बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे को डिप्टी सीएम के साहब का फोन आता था, बोलते थे कि जिस मस्जिद के बारे में आपने लिखा है कि आखिर है किधर मस्जिद। और वो जब BRS गवर्नमेंट में BRS इलाका होने से पहले BRS किसी ओहदे पर नहीं थे तो फौजी मेरे साथ उस मस्जिद का दौरा करते थे और मैंने आपको कई हैदराबाद मस्जिदों का दौरा भी करवाया था। अल्लाह के फजल करम से डिप्टी सीएम साहब ने अब तक